کے ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ سیپریٹ ہر ایک کی ریٹرن فائل ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی ایکسپینڈیچر جو ڈفرینٹ پرٹیکولر کلاسز آف انکم میں ہوا ہے اس کو علیحدہ علیحدہ اندازہ کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ ایک خرچہ انکم فرام بزنس میں ہوا ہے، ایک خرچہ انکم فرام بزنس میں ہوا ہے اور ایک خرچہ انکم فرام ادر سورس میں ہوا ہے، اور اگر وہ کمبائن خرچہ ہے تو آپ دونوں کو کیا کریں گے؟ الگ الگ کریں گے. اور اسی طرح سے اگر وہ ڈفرینٹ رجیم میں ہوا ہے، یعنی ایک ایسی رجیم جس کے اندر آپ یہ کہہ لیجئے کہ آ جاتا ہے سیپریٹ بلاک، اور ایک ایسا آ جاتا ہے جس کے اندر آ جاتا ہے جس کے اندر آج ہم کام کر رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں این ٹی آر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ شاباش، این ٹی آر کہتے ہیں، جس کو ہم نارمل ٹیکس رجیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں میں سے سپلٹ ہو جاتا ہے. تو اگر رجیم ڈفرینٹ ہے تو بھی خرچہ جو ہے وہ مختلف ہونا چاہیے. اب اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ کہ اچھا اسی طرح اگر فرض کریں ایک کے اوپر ٹیکس لگتا ہے اور ایک ایگزمپٹڈ ہے، تب بھی خرچہ کیا ہونا چاہیے؟ الگ الگ ہونا چاہیے. اب اس کی مثال کیا ہے کہ یہ میرا شو روم ہے اور یہاں پہ میں نے ایک سویپر رکھا ہوا، وہی سویپر جو ہے وہ میرے کھیت میں بھی سپرے کرتا ہے اور وہی یہاں پہ سپرے کرتا ہے. اب اس کی سیلری تو ایک دے رہے نا، تو آپ کو اس کی سیلری کیا کرنی پڑے گی؟ سپلٹ کرنی پڑے گی کہ کتنی آپ کی بزنس کے ہیڈ میں جا رہی ہے، انکم فرام بزنس میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور کتنی ایگزمپٹڈ میں جا رہی ہے. ایگریکلچر ایگزمپٹڈ ہوتا ہے نا، تو یہ مجھے الگ کرنا پڑے گا. تو سپلٹ کرنا پڑے گا، خرچے کی پورشنمنٹ کرنی پڑے گی تاکہ جو اندازہ ہے وہ صحیح لگے اور ٹیکس ادھر کا خرچہ ادھر کا ادھر نہ چلا جائے، خرچہ ادھر کا. تو اس سلسلے میں جو ہمیں ایکسپینڈیچر انکرڈ کیا ہے اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایلوکیٹ کرنا چاہیے ڈفرینٹ کلاسز کے درمیان، جیسے انکم فرام بزنس، انکم فرام ادر سورس. ایک مثال یہ ہے. ڈفرینٹ رجیم کے درمیان، رجیم کی مثال کیا لے سکتے ہیں؟ نارمل ٹیکس رجیم اینڈ سیپریٹ بلاک آف انکم. دونوں الگ الگ رجیم ہے، دونوں میں جو خرچہ اکٹھا کیا ہے اس کو ڈفرینٹ کلاسز. کون کون سی کلاس؟ میں فرض کریں ٹیچنگ نہیں کرتا، میں فرض کریں ٹیچنگ نہیں کرتا اور میرا جو کاروبار ہے نا وہ ہے پھل بیچنے کا. پھل بیچنے کا، اچھا پھل بیچنے کا میرا کاروبار ہے اور میں نے سوات سے یہ ٹرک خریدا ہے 80,000 روپے کا، اور میرا یہ جو ڈرائیور ہے اور بروکر ہے یہ لے کے آ رہے تھے راستے میں، اور یہ جیسے ہی پہنچے مردان تو وہاں ایک بندہ انہیں ٹکر گیا. انہوں نے کہا یار لاہور کیا جانا ہے، میں تمہیں 1.5 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، تم اسے یہیں بیچ جاؤ. یہ مجھے فون کرتے ہیں کہ سر جی پھلوں کی تو ادھر اشد ضرورت، کسی بندے نے اپنی والدہ کو ختم دلانا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ٹرک جو ہے وہ مجھے دے دو. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار ڈن کرو، اور کیا چاہیے، لاہور لا کے 1.25 لاکھ میں بیچنا تھا، 1.5 لاکھ مردان میں مل رہا ہے، تو مردوں والی بات کرو، بیچو. تو اس کو کہتا ہے where a person is earning net commission or brokerage then his gross profit will be taken as ٹرن اوور. تو اس کا جو گراس پروفٹ ہے اسے ہم اس کا کیا کر لیں گے؟ ٹرن اوور کنسیڈر کر لیں گے، یعنی اس کا جو سیل ہے وہی اس کا مین منافع کنسیڈر کر لیا جائے گا، یا جو بھی اس کا نیٹ کمیشن آئے گا بروکریج کا وہ اس کا گراس پروفٹ مان لیا جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 1.5 لاکھ روپے میں سے 80,000 روپیہ مائنس ہو گیا، پیچھے رہ گیا 70,000 روپیہ. تو یہ کیا مان لیا جائے گا؟ یہ ٹیکن اوور مان لیا جائے گا کہ یہ میں نے ٹرن اوور جنریٹ کیا، یعنی منافع کمایا ہے. یہ دیکھیے نا، یہ ہو گیا نا اس کا اپنا گراس پروفٹ. کیسے؟ نیٹ کمیشن. یہ میرا نیٹ کمیشن آ گیا نا، وہاں سے اٹھایا اور یہاں لا کے میں نے کیا کیا؟ نیٹ کمیشن کر لیا. اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ جو میں نے کمایا ہے وہ میرا سیدھا سیدھا ٹرن اوور بن گیا. اب اس کے اندر جو رول ہے آپ کے، وہ رول یہ ہے کہ ہم ان ہیڈز کے اندر آمدنی کو ڈالتے ہیں. یہ ہیڈز پہلے ڈسکس ہو چکے ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں نا، سیلری سنا ہوا آپ نے، ٹیکس بھی لگایا تھا آپ نے،
इनकम फ्रॉम बिजनेस सुना था आपने? अच्छा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सुना था? अच्छा, उसके बाद आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सुना था, ठीक है, और प्रॉपर्टी सुना था, और स्पेकुलेशन चार्जेबल एंड दिस एंड दैट आपने इसको शामिल कर लिया। अच्छा, उसके बाद आपने एग्जेम्प्ट इनकम, एग्रीकल्चर, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, इस पे बात हुई थी हमारी कि हम बात चीजों को सेपरेट ब्लॉक में ले जाते हैं, जैसे स्टॉक की बेचना खरीदना सेपरेट कर देते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी का, और फाइनल टैक्स रिजीम में डिविडेंड को ले जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ हेड्स हैं। अब आगे जितना भी हम कोर्स पढ़ेंगे ना, उसमें क्या होगा, आगे जितना भी आप कोर्स पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आपने याद रखना है कि हमने इस एक एक हेड के अंदर क्या क्या होता है ना, वो पढ़ना। मिसाल के तौर पे 2 चैप्टर हमने इसमें पढ़ने हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कैसे होती है। जाहिर है बिजनेस के अंदर मटेरियल भी आता है, लेबर भी आती है, ठीक है जी, इनडायरेक्ट लेबर आती है, इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, वो सारा कुछ ही आता है, उसको देखना। उसके अंदर मशीनें इस्तेमाल होती हैं, इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, तो ये सब हमें देखना पड़ेगा क्या हाल है। अच्छा, अब देखें, अगर जो है, अगर आप कहें कि जी कैपिटल गेन, तो उसके अंदर आप शेयर्स बेचते हैं, आप गोल्ड बेचते हैं, आप प्लाट बेचते हैं, तो ये आगे चल के हमने इनको क्या करना है, इनकी तफसीलात पढ़नी है, ये मेन चीज है। तो इसमें से अगर कोई एक चीज इस वक्त आपको नाम सुन लिया है, हाँ इन डेप्थ नहीं पता, तो वो आगे चल के पता नहीं। ये सैलरी का चैप्टर नंबर 5 पूरा चैप्टर ही इसका, ठीक है, कैपिटल गेन का चैप्टर है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के, तो इन सब के चैप्टर लहदा जब वो सारे पढ़ लेंगे तो ये हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे आपको आ जाएगा। तो बेहतर ये है कि हम क्या करें, इस पर टाइम यहां ना खपाएं, बस ठीक है, आपको समझ आ गया कि इन हेड में हमने इनकम डाली, और कुछ की मैंने प्रैक्टिस भी करा दी आपको, ठीक है, लेकिन मैंने वो लमसम दिया था कैलकुलेट करके, सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, लेकिन आगे चल के इनके अंदर के काम करेंगे आप, सैलरी के हेड्स, इनकम के इनर हेड, सब हेड्स, वो पढ़ेंगे आप। अच्छा बच्चों, अब जो फॉर्मूला आप बनाएंगे ना स्प्लिशन का, बाजू का तो होता है ना, एक से ज्यादा खर्चे होते हैं, वो टेस्टेड होना चाहिए। उसको टेस्ट कौन करेगा? उसको कोई प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट टेस्ट करेगा कि आपका फॉर्मूला ठीक है, जो भी आपका कारोबार है, कि अगर आप रॉ मटेरियल को अलग करते हैं वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाता है, अगर आप उसके साथ कोई शेयर्स वगैरह खरीदते और बेचते हैं, कुछ और कारोबार कर रहे हैं, और वो मुख्तलिफ तरह के कारोबार है, और उनके काफी सारे खर्चे आप इकट्ठे ही दे देते हैं, एक कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं जो इन सब हेड में आपको एडवाइस कर रहा है, तो खर्चा सब पे कैसे डालना है, उसके लिए एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो जो फॉर्मूला है वो क्या करना पड़ेगा, हमें टेस्ट कराना पड़ेगा। उसको टेस्ट कराने के लिए हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, या तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए, वो इसको टेस्ट कर सकता है। लेकिन उसकी टेस्टेशन और फार्मूला, और वो फार्मूला जो FBR बनाएगा, उसमें 10% तक का डिफरेंस जो है वो काबिले कबूल है। लेकिन उससे ज्यादा का अगर डिफरेंस आया तो इसे बदनीति समझा जाएगा, और फिर वो एक्शन किया जाएगा कि आप उसको रिकंसीडर करें, और पिछले भी जो आपने रिटर्न फाइल किए उनको रिवाइज कराएं। पेनल्टी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना बड़ा जो है अवेजन किया टैक्स का। तो क्या करेंगे, आप फार्मूला बनाएंगे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी आप एडवाइजरी ले रहे हैं एक बंदे से, आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से भी एडवाइजरी ले रहे हैं, कैसा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एनालिस्ट हायर किया हुआ जो हर जगह आपकी मदद कर रहा है। तो अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो आपको वो खर्चा सब पे क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा ना। तो वो बांटने के लिए क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्मूला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। वो जो फॉर्मूला होना चाहिए वो टेस्टेड होना चाहिए, किससे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से टेस्टेड होना चाहिए। और अगर उसके टेस्टेड फॉर्मूला और वो जो इंस्पेक्टर ने बनाया जाके FBR में, उसमें 10% से ज्यादा का डिफरेंस निकला, तो फिर माना जाएगा कि आपने इसके अंदर क्या किया है, कोई जरूर कोई किसी किस्म की अटेंशन थी आपकी। क्लियर जी। अच्छा बच्चों, अब आ गया सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। सीजेशन मतलब सीज हो जाना। सीज हो जाने का मतलब है बंद हो जाना, बंद हो जाना। लेकिन यहां ये मैटर नहीं करता बंद हो जाना, कारोबार तो बंद होते ही रहते हैं, कारोबार तो बंद होते ही रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल हो कि कारोबार बंद हो जाए और आमदनी उसके बाद आए, कारोबार बंद हो जाए, आमदनी उसके
بعد आए, तो फिर क्या करें? एक इशू है. जैसे फर्ज करें कि आप 4 दोस्तों के साथ जाते हैं बशीर दारुल माही पे, ये आप है, ये आपके दोस्त हैं. आप वहां मछली खाते हैं, डट के खाते हैं, 2.5-3 किलो 4 किलो 5 किलो मछली खा जाते हैं सर्दियों के दिन. आपने मछली खा ली. मछली खाने के बाद दोस्त उठ के गया है और आपने समझा कि दोस्त ने बिल अदा कर दिया, लेकिन एक्चुअली वो गया था टूथपिक लेने. तो मसला आपने समझा बिल दे दिया, आप उठ के आ गए, उन्होंने भी नहीं पूछा. आपको याद आया अगले साल, यार पिछले साल तूने मछली बड़ी अच्छी खिलाई. कहता है यार वो तो तूने खिलाई थी. नहीं यार मैंने तो नहीं खिलाई थी, बिल तो तूने दिया था. तो भूल गया. कहता नहीं मैंने भी नहीं दिया है, बिल तो दिया नहीं. वो गए बशीर दारुल माही के पास. वहां जाते हैं तो वो बंद हो चुका. बाहर एक चौकीदार बैठा हुआ है, एक मानो उसके साथ बैठी हुई. अब क्या करें? ना चौकीदार को पैसे दे सकते हैं, ना मानो को दे सकते हैं. अब आप चले गए बशीर दारुल माही वाले के घर और आपने नोट किया. उन्होंने कहा जी हराम आज तक खाया नहीं, और ये जो खाया है ना ये हमें तकलीफ दे रहा है, तो आप ये करेंगे ये पैसे हमसे ले. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम इज क्लोज्ड. अच्छा ये ना स्लाइड्स आपके पास भी हैं, यानी दीज आर अवेलेबल इन योर मोबाइल्स. आई हैव सेंट यू टुडे मॉर्निंग. अच्छा तो कहता है कि अगर ये जो है ना सोर्स ऑफ इनकम इज क्लोज्ड डाउन, क्या हो गया है? क्लोज डाउन हो गया है. बट रिसीव्ड एनी इनकम आफ्टर क्लोजिंग डाउन, अगर कोई इनकम रिसीव हुई है क्लोजिंग डाउन के बाद में, तो फिर क्या किया जाए? तो कहता है अगर क्लोजिंग डाउन के बाद में इनकम मिली है तो फिर इसका हल यही है कि आफ्टर द टैक्स ईयर इन विच इट इज क्लोज्ड, या लेटर इन एनी टाइम, या वो साल जिस साल वो बंद हुआ, या उसके भी कभी बाद में, यानी हो सकता है आपको याद 2 साल बाद आया हो. तो कहता है फिर भी अगर तुम्हें आमदनी मिली है तो फिर shall be taxable in the normal way assuming that source has not been closed down. तो हम assume करेंगे सोर्स बंद हुआ ही नहीं, यानी दारुल माही की दुकान वैसे ही चल रही है, बिल्कुल बंद नहीं हुई. अगर तीसरे साल भी आमदनी आई है तो तीसरे साल भी आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है. इसका मतलब ये हो गया, बात समझ नहीं आपको जी, कि अगर कारोबार बंद हो गया है और किसी ने आपके पैसे देने हैं और वो पैसे लेके आ गया कारोबार बंद होने के बाद, और उस कारोबार के ओनर से या शेयर होल्डर से उसने राब्ता किया या पार्टनर से और उसने अदायगी कर दी. अब कारोबार अगर बंद भी हो गया है तो हुकूमत क्या कहती है, सॉरी एफबीआई क्या कहती है, हम कंसीडर करेंगे कि कारोबार बंद हुआ ही नहीं है, आप शराफत से टैक्स अदा कर दो, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है. क्लियर बच्चों? अच्छा जी. अब उसके बाद एक बात यह भी है कि कहता है कि फर्ज करें इफ एक्सपेंडिचर आर डिडक्टेड ऑन पेएबल बेसिस. पेएबल बेसिस का मतलब क्या हुआ? जब मिलेंगे तब रिकॉर्ड करूंगा. देन वी मस्ट रिकॉर्ड इन व्हेन पेएबल आर नॉट व्हेन पे टू सप्लायर. तो फिर हमें उस वक्त रिकॉर्ड करना है जब वो पेएबल है, और अगर ऑन रिसीव बेसिस हो रहे हैं तो फिर ऑन रिसीव बेसिस. कहने का मतलब क्या हो? मतलब ये हुआ कि इफ रिकॉर्डेड व्हेन पेड देन नॉट व्हेन बिल इज रिसीव्ड. अगर पेड की बुनियाद पे है तो फिर बिल रिसीव की बुनियाद पे रिकॉर्ड ना करना, वरना रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, डबल हो जाएगी. क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी. तो अगर तुम रिसीव्ड की बेस पे कर रहे हो तो फिर उस वक्त करना जब रिसीव हुआ, और अगर पेएबल की बेस पे कर रहे हो तो फिर उस वक्त करना जब, इट्स अप टू यू, जो भी तुम्हारा अकाउंट सिस्टम है, सारे स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के, उसके मुताबिक अगर रिसीवेबल बेस पे है तो फिर पेएबल पे ना करना, और अगर पेएबल है तो रिसीवेबल पे ना करना, किसी एक पे करना. तो अब वो कह रहा है कि इफ रिकॉर्डेड व्हेन पेड देन नॉट व्हेन बिल इज रिसीव्ड. पहली बात, अगर रिकॉर्डेड की बुनियाद पे तो बिल रिसीव करने पे रिकॉर्ड नहीं होगा. और दूसरा बात कहता है इफ रिसीविंग आर रिकॉर्डेड व्हेन रिसीव्ड. अगर रिसीविंग हुई जब कोई चीज रिसीव हुई है तो फिर तुम उसे
रिकॉर्डिंग की बुनियाद पे ना कर देना, यानी एक की बुनियाद पे करना, दो की बुनियाद पे ना करना, वरना खराब हो गई। वो तो आप समझदार ही। अच्छा, तो मैंने क्या लिखा, इफ रिकॉर्डेड व्हेन पेड देन नॉट व्हेन बिल इज रिसीव्ड। और दूसरा फिक्रा यही बना देना चाहिए था ना, इफ इट इज रिकॉर्डेड व्हेन बिल इज रिसीव्ड इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड व्हेन पेड। मेरे ख्याल में इस फिक्रे को डबल लिख देना चाहिए था मुझे। क्या ख्याल है? आप ऐसे ही कर लें, आप इसी फिक्रे को डबल लिख लें, ऊपर का भी छोड़ दें, नीचे का भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। उसी फिक्रे को लिख लें कैसे, इफ रिकॉर्डेड व्हेन पेड देन नॉट व्हेन बिल इज रिसीव्ड, एंड इफ रिकॉर्डेड व्हेन बिल इज रिसीव्ड देन नॉट व्हेन पेड। ये ज्यादा आसान हो गया ना। अच्छा, ऐसे ही आप भी किया करें यार, कोई किताब पे, कोई नोट्स पे चीज को आसान कर लिया करें, ताकि जब पेपर आए तो एकदम सारी अंग्रेजी इकट्ठा लोड ना पड़ जाए आपके ऊपर। चीजों को आसान करके अपने अंदाज से आपने लिखा हो। उसके लिए लाजिम नहीं आप नोट्स बनाएं, जो स्लाइड्स आ रही है वो प्रिंट कर लें, उनके ऊपर लिख लें, जो किताब आई कैप की उसके ऊपर चिट्टे लगा दें, ठीक है, ऐसा कुछ कर लें। तो फिर आप पास ये वाली डिवाइस होती है ना जो मेरे पास है, फिर तो मसला ही हल हो जाता, आप उसी पे लिख के सेव कर देते। अच्छा बच्चों, नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, ये पिछली क्लासों का भी लिखा पड़ा होता है हमारे पास, लेकिन क्लासों की आमतौर पर राय होती है कि सर फ्रेश माल दें, बासी माल हमें ना दें। यानी अगर ये खाली स्लाइड ना लाए और सामने ना ला के लिखें तो नहीं सर मजा नहीं आया, हमें हमारे लिए लगा डबल रोटी बनाए। अच्छा, क्लियर बच्चों, कोई चीज मुश्किल तो नहीं है? अच्छा जी, अब बच्चों एक है रिकूप्ड एक्सपेंडिचर। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान न चाहते हुए कोई गलती कर जाता है, और ऐसी सूरत में आपको आमदनी मिल जाती है बाद में, यानी वो बंदा आपको पैसे वापस कर देता है, तो हम कहते हैं कि ये आपके पैसे रिकूप्ड हो गए। मिसाल के तौर पे आपने किसी बंदे को अपने लिए 12 सॉक्स खरीदने के लिए पैसे दिए, 1 दर्जन सॉक्स, और उसने डब्बा दे दिया। अब डब्बा दे दिया और आप लेके आ गए, आपने भी सॉक्स निकाल के पहनने शुरू कर दिए, गिने नहीं, उसने भी दे दिया, लेकिन लेटर ऑन उसे किसी ने बताया कि उस डब्बे में से हमने 2 सॉक्स बेचे हुए थे पहले, वो तो 10 थे। आप जब दोबारा गए सॉक्स लेने तो उसने कहा कि नहीं सर, वो इसी दफा गड़बड़ हो गई हमारे से, तो ये 2 सॉक्स के पैसे आप पहले ले लें। तो ये क्या हो गया, ये पैसे रिकूप्ड हो गए। वो कहता है जो रिकूप्ड आता है ना पैसा, वो आप आमदनी में सीधा डाल दें। किसमें डाल दें? आमदनी में डाल दें। कहते हैं इन केस ऑफ सबसीक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और लॉस, अगर कोई एक्सपेंडिचर या लॉस आपको कोई बंदा वापस कर दे, रिकूप का मतलब क्या है? वापस कर दे, वापस कर दे, ये ला की एक्चुअल लैंग्वेज है। इन कैश आर काइंड, इन कैश कर दे, आर काइंड कर दे। इन कैश क्या हो सकता है? पैसे, और इन काइंड क्या हो सकता है? उसके बदले 2 आला किस्म की टी शर्टें दे दे, ठीक है। अच्छा, द रिकूप्ड अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम, पहली बात है इनकम में शामिल कर दे। और दूसरी, ये तो बात क्लियर है, जब इनकम में होगी तो क्या होगी? चार्जेबल टैक्स। एग्जाम्पल क्या लिखी है? सीएफई ने रिपेयर करवाए अपने एसी 7,000 रुपए देके, 7,000 रुपए देके अपने एसी रिपेयर करवाए। तो सर्विस प्रोवाइडर जहां उसने रियलाइज किया 2020 में ये जो काम किया था कि उसने 2,000 रुपए फालतू चार्ज कर दिए। एक मुबशर वसीम नाम का शरीफ आदमी था, उसका एसी जानबूझ के हमने वाश नहीं किया, वो शक्ल से बड़ा यतीम सा लगता था, तो हमने कहा इसने कौन सा बोलना है। बाद में ख्याल आया, ख्वाबों में कोई फरिश्ता आया, उसने कोई आग शाग जला दी, और कहा नहीं यार ये वापस कर देते। अब वो जो पैसे वापस आ गए हैं वो किस में डाल देंगे? और उस पर क्या लगा देंगे? टैक्स लगा देंगे। क्लियर जी? कोई बड़ी बात तो नहीं है बच्चों, क्या ख्याल है? अच्छा, अब एक चीज और आ गई, वो क्या है? वो ये है कि कोई ट्रांजैक्शन अगर इंटरनेशनल करेंसी में की जाए तो हमारे पास तो रुपए का हिसाब है, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? रुपए में। और किस दिन के हिसाब से करेंगे? जिस दिन वो वकूआ हुआ है उस दिन का करेंसी रेट हम लगा देंगे। सिंपल बात, ठीक है। मोहसिन बैठ जाए यार, सिर्फ एक, ठीक।
तो क्या कहते हैं, उसी दिन का रेट हम लगा देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात यह है कि इसके अंदर क्या सिलसिला कार होगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी एसेट किसी और से मिलेगा, या फिलहाल आप यही समझ लीजिए कि हम जो है इसको इतना ही रख लेते हैं करेंसी तक, कि कोई ट्रांजैक्शन हुई, यहीं से कल हम क्या करेंगे, दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर?